Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 22nd January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan for the next trading day, which will be on 25th January, right? So बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी है, so enjoy करें. And if you are new to our YouTube channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation, and also be generous to share the videos with your friends and trading communities such that they can also take advantage of quality knowledge, right? We have created hundreds of videos, friends, here for our trading community such that they can learn data analysis, technical analysis, fundamental analysis, IPO analysis, and much more, right? So let's go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty and see what has happened in last few days, right? So Friday, the market was furious, and we could see that Nifty, uh, you know, uh, although opened flattish, but it wiped off last 3 days, all gains in a single day. Similarly, Bank Nifty also, but Bank Nifty was so furious that last 13 days gains, it just wiped off in one day. So what happened? Market opened flattish with the global cues. However, the profit booking, we've been saying all the time, market is overheated, and in overheated market, the indicators need to get cooled off. The market would be looking for the profit booking, and that's what precisely happened on Friday. Almost all the sectors witnessed profit booking except IT and auto sectors, where some buying interest were seen. Overall जो contributor थे friends फ्राइडे के निफ्टी 50 से, वो थे बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्पोरेशन, आइशर मोटर, हिंद यूनिलीवर एंड अल्ट्राटेक सीमेंट. जो लूजर थे वो थे एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, ICICI बैंक, हिंडाल्को. These were the biggest losers from Nifty 50 stack. Overall, Nifty की breadth negative रही. 8 stocks advanced and 41 declined, and one stock of course remained unchanged. अगर निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी स्टार्ट हुई थी 7 पॉइंट्स के लॉस के साथ में, बट इट ओवरऑल लॉस 218 पॉइंट्स, एंड हाल फिलहाल में 218 पॉइंट का लॉस काफी दिनों के बाद में. इनफैक्ट ये 24 दिसंबर के बाद में इतना बड़ा लॉस एक दिन में हुआ है, राइट? So Nifty closed at 14,372 with 1.5% loss, while as a Bank Nifty closed at 31,187, and Bank Nifty lost a whooping 1020, 1020 पॉइंट का ओवरऑल लॉस हुआ बैंक निफ्टी को. एंड अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो कल सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं गिरा, बल्कि निफ्टी लार्ज कैप ऑलमोस्ट 1.41% गिरे, मिड कैप 1.22% गिरे, और स्मॉल कैप थोड़ा बच गए इन द सेंस बहुत ज्यादा नहीं गिरे, 0.58% गिरे. सो 0.5% यू कैन से, राइट? एंड हमने जो एक ट्रेडिंग रेंज चूज की थी फ्रेंड्स, वो थी 14,500 से 14,800 की. एंड लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट? 14,500 का लेवल तो टूटा ही टूटा. दो निफ्टी में थोड़ा बायस हमको थर्सडे फ्राइडे के लिए बायस जो दिख रहा था, थोड़ा बुलिश दिख रहा था, व्हाइल बैंक निफ्टी वाज क्लियरली बेरिश. सो निफ्टी ने तो डाउन साइड में रेंज तोड़ी ही तोड़ी, बैंक निफ्टी ने भी अपनी रेंज डाउन साइड में कंप्लीटली तोड़ दी, राइट? सो it does happen, friends. There are days when the market market is a kind of herd mentality, right? Profit booking start हुई. कल की डेट में नस DIs तो रेगुलरली प्रॉफिट बुक कर रहे थे, बट कल FIIs ने भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की. सो दैट had a double whammy on the market, Nifty as well as Bank Nifty. So अगर ट्रेंड पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रेंड क्लियरली कंफर्म्ड है कि डाउन ट्रेंड, लोअर लो बनाया और लोअर हाइज है निफ्टी एज वेल बैंक निफ्टी में, राइट? एंड as I've been saying that the market at this high would correct and consolidate, that's precisely what is happening. So you shouldn't get surprised. Overall structure abhi bhi bullish hai, intact hai overall structure. Now
अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से थे तो डेली में तो वीकली कैंडल बनाई है। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट एंड सी की वीकली चार्ट में किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, राइट। सो इन वीकली चार्ट ऑल्सो यू कैन सी एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो कम्प्लीटली लार्ज बियरिश कैंडल बनी विद हाई big wick on the upper side on both the sides, right? So last 2 week का अगर परफॉर्मेंस देखें फ्रेंड्स तो काफी सेलिंग प्रेशर आया, तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी जैसे ही टॉप पे जा रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्ट हो जा रहा है, राइट। So you need to be careful. If you are in profit, keep on booking part profit. That's what I've been saying, like nobody has ever become poorer by booking the profit. Let's look at price action perspective से आपको मंडे को क्या देखने को मिल सकता है। Now you also need to know that Tuesday 26 जनवरी की छुट्टी रहती है, so next week is going to be truncated week. वीकली जो एक्सपायरी है उसमें सिर्फ 4 ही दिन मिलेंगे आपको ट्रेडिंग के लिए, तो एक्चुअली आपको 3 ही दिन मिलेंगे, राइट। वीकली एक्सपायरी के लिए हफ्ते में 4 दिन मिलेंगे। सो लोअर साइड में आपको निफ्टी में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 14,351 का, सेकंड 14,300 का, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है 14,255 का, एंड थर्ड है 14,222। सो 14,222 शुड बी द डाउन साइड मैक्सिमम ऑन मंडे। अगर निफ्टी ऊपर के साइड में ट्राई करती है वापस, बुलिश होती है, तो 14,432 एक लेवल मिलेगा उसको रेजिस्टेंस का, सेकंड मिलेगा 14,480 का, थर्ड मिलेगा 14,534 का, फोर्थ मिलेगा 14,585 का। दैट इज ओपनिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे। अगर वो टूटता है तो 14,619 विच इज क्वाइट फार ऑफ, राइट। बट यू नेवर नो, मार्केट है, अगर डाउन जाती है तो ऊपर भी आती है, हालांकि ऊपर स्लोली आती है ना, सिमिलर। सो upper, we can say that from the price action perspective 14,222 to 14,585 की रेंज जो है उनको मंडे के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। नाउ गो टू द बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट दिख रहा है मेरे को फ्रेंड्स वो है 31,045 का पहला सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट है 30,850 895 का, थर्ड सपोर्ट है 30,715 का, एंड फोर्थ लेवल है 30,538 का। So lower side 30,538 seems to be a good support, right? And ये consolidation का जोन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी। हालांकि बैंक निफ्टी अभी असेंडिंग ट्रेंड लाइन में है, ट्रेंड लाइन पे जनरली सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है। नाउ अगर रेजिस्टेंस देखें बैंक निफ्टी के लिए, जो पहला रेजिस्टेंस ऊपर जाने में रुकेगा वो है 38% फिबोनाची लेवल जो इसने तोड़ा था फ्राइडे को, दैट कम्स एट 31,372। सेकेंड रेजिस्टेंस है 31,485 पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 31,855 655, 31,815 next, 31,936 and 32,000 both. So there are many resistance levels here. Some are the price action based, some are Fibonacci level based, and ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए भी मंडे की जो अपवर्ड जर्नी होगी काफी टफ होगी इतने रेजिस्टेंस लेवल के साथ में। बट अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी को लोअर साइड में न सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कंसोलिडेशन जोन है, बट ऑल्सो ये trend line. Generally, I've seen in my years of experience that the trend lines are very, very strong support and resistance levels. So expect something good for Bank Nifty, at least a small bounce back on Monday, right? So Bank Nifty की जो रेंज दिखाई दे रही है 30,538 से लेके 31,936 की यहाँ पे दिखाई दे रही है प्राइस एक्शन से। लेट्स गो टू द डेटा पॉइंट, एंड डेटा पॉइंट से देखेंगे किस टाइप के बिल्टअप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, राइट। सो एज आई सेड कि न्यू वेबसाइट ऑफ NSE is not providing proper data, so I've taken this data from another website, that's of Sherkan. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है क्लोज टू 14,370, so 14,350 is going to be my at the money here, right? So 14,350 को अगर मैं एट द मनी लेता हूं तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्टअप मुझे दिखाई दे रहा है, ऑल्दो इवन 14,350 is also very strong support level. Next support level is 14,300, यहाँ पे भी अच्छी खासी बिल्टअप है, राइट। एंड 14,250 पे भी अच्छी खासी बिल्टअप है, एंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है मुझे दिख रहा है 14,200 पे, राइट। So this I will consider as a lowest level in case Bank Nifty slips down further.
but I can also consider 14,300 as a very strong level, right? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो almost 1.5 million कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं और 2.2 million कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे 14,200 पे. सो लो आई कैन से 14,200 यहाँ पे क्लियर है. और अगर मैं कॉल साइड में देखता हूँ तो कॉल साइड में फ्रेंड्स अच्छा एक बिल्टअप दिखाई दे रहा है 14,400 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा. देन नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 14,500 पे है, ऑल्दो 14,450 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लेवल. एंड जो यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वो है 14,600 पे, राइट? 14,600 पे 3.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो 14,700 पे भी आपको 4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो दीज आर द लेवल, बट ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल, बट उससे पहले ये 3.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट वाला ये भी एक लेवल है, राइट? 14,500 का. सो अगर मैं बात करूं कि मंडे थोड़ा म्यूटेड रहेगा तो आई कैन से इट कुड बी 14,200 टू 14,500, राइट? एंड अगर मंडे थोड़ा वोलेटाइल रहता है तो देन यू कुड सी 14,200 टू 14,600 की range, right? And now the PCR of this option chain series, friends, is somewhere around 0.79, 0.79 का इसका PCR, which is a little negative bias, right? So this now अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज देखें तो 14,200 से 14,600 की एक ब्रॉड रेंज नजर आ रही है, जो कि हमको प्राइस एक्शन से भी दिखाई दी, राइट? सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन चेन दिखा रही है वो दिखा रही है 31,000 से 31,500 की, एंड सेकंड जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 32,000. तो 31,000 से 32,000 की रेंज ऑप्शन चेन से दिखे ना. ऑप्शन चेन के हिसाब से 31,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, राइट? और अगर हम प्राइस एक्शन से भी देखें तो प्राइस एक्शन से भी एक जो 31,000 का, इनफैक्ट 30,800 या 30,900 या इवन 31,000 का ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये बहुत सॉलिड दिखाई दे रहा है यहाँ पे. दैट्स वेयर बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, राइट? सो अगर अब प्रोविजनल डेटा की बात करें फ्रेंड्स तो प्रोविजनल डेटा फ्राइडे का, as I said, FIs were also net sellers. So net sellers they were with 636 crore, and the DIs तो as usual 1,290 crore के आसपास में उन्होंने सेलिंग किया. तो ओवरऑल दोनों ने सेल किया तो इसके लिए मार्केट काफी गिरी कल. अदरवाइज जनरली आप देखेंगे FIs नेट बायर्स रहते हैं. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल जनवरी में तो 21,077 करोड़ का नेट बाइंग किया है FIs ने, और DIs ने जो नेट सेल किया है वो 15,760 करोड़ का. सो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का तो डिफरेंस अभी भी है, राइट? और FIs भी ऑफकोर्स अगर खरीदते हैं तो उनको भी प्रॉफिट बुक करना है. तो कल जो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी में, राइट? ऑलमोस्ट ऑल लार्ज बैंक्स, इनफैक्ट SBI होने दो या एक्सिस बैंक होने दो या ICICI, ऑलमोस्ट ऑल काउंटर्स वर ऑन सेल. तो 3% to 5% की सेल हमने देखने को मिली हमको वहां पे, राइट? सो अगर मैं US यूरोपियन मार्केट की बात करूं फ्रेंड्स तो इनफैक्ट ऑल द मार्केट्स आर इन करेक्शन एंड कंसोलिडेशन. कल जो US और यूरोपियन मार्केट थे वो भी करेक्ट हो रहे थे, बट यहाँ ऑफ कोर्स मतलब दे वो अराउंड a percent माइनस में, राइट? सो इफ यू रिमेम्बर 2 days बैक आई सेड कि भाई अब जो प्राइस एक्शन थ्योरी कहती है वो ये नहीं कहती कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज. नाउ द प्राइस एक्शन थ्योरी सेज ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, राइट? व्हाई ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स? बिकॉज जब मार्केट एक रेंज में फंसती है, जब एक रेंज में ट्रैवल कर रही होती तो वो टाइम पर मार्केट अप डाउन दोनों साइड में जाते रहती. ऐसे में सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स थोड़ा रिस्की हो सकता है, और ओवरहीटेड मार्केट में फर्दर रिस्की होता है वो चीज. तो इसके लिए अभी भी फिलोसफी वही रहेगी. If you want to go swing long, then you have to see the Nifty has to go above somewhere around 14,750 के ऊपर सस्टेनेबली उसको ब्रेकआउट चाहिए है, और 32,700 के 750 के ऊपर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट से स्विंग लॉन्ग तब बन सकती है दोनों इंडाइसेस में. नाउ
ऑन द लोअर साइड अगेन ये रेंज टूटेगी अगर 30,500 की, तो बैंक निफ्टी में हम स्विंग शॉर्ट लेंगे सिमिलरली, और निफ्टी में हम स्विंग शॉर्ट तभी लेंगे जब 14,200 की रेंज डाउन साइड में टूटेगी। अगर ये रेंज में है तो कंसोलिडेशन की रेंज है, वो रेंज बाउंड रहेगी, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगी, राइट। तो इंटरनेशनल क्यूज से मार्केट क्यूज लेते रहेगी। अभी हमने ये भी देखा कि क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आ रहे, क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट सो फार more or less जो मेजर कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो दैट इज वन हिंट व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, दैट मार्केट मे नॉट बी फॉलिंग शार्पली, राइट। सो अभी छोटे टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख लेते हैं, हाउ यू कैन ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन मंडे, राइट। सो as you could see there was a sharp fall, थोड़ा भी राइज हुआ तो वो सेल आउट हुआ है। यू नीड टू बी केयरफुल, मार्केट अभी भी ओवर हीटेड जोन में है, तो ओवर हीटेड जोन में करेक्शन फर्दर आ सकती है। नाउ लेट्स से 14,350 से लेके 14,432 की ये जो रेंज होगी, इस रेंज में ट्रेड ना करें, मार्केट का साइडवेज होगी, रेंज बाउंड होगी, काफी देर तक आपको परेशान करेगी। सो इस रेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो ओआरसी के ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करें। ओआरसी का ब्रेकआउट अगर अपसाइड में होता है और या डाउन साइड में होता है तो मार्केट को 30-35 मिनट सस्टेन होने दें वो लेवल पे, देन ओनली शॉर्ट और लॉन्ग इनिशिएट करें। ऑफ कोर्स आपका वीवैप और आरएसआई देखें। अगर मैंने कल की परसों की बात की थी तो मैंने कहा था कि अगर आपको मार्केट डाउन साइड में जाती है ये लेवल पे, ओआरसी ब्रेक होता है, ओआरसी ब्रेक हुआ अपर साइड में यहाँ पे, लेकिन जब ओआरसी अपर साइड में ब्रेक हुआ यू कुड सी दैट आपका आरएसआई बिलो 60 था, तो लॉन्ग ट्रेड नहीं बनती थी, राइट। सिमिलरली अगर आप ये लेवल पे देखें, जब ओआरसी डाउन साइड में ब्रेक हुई तो आरएसआई 40 के नीचे था, और 40 के नीचे आरएसआई है तो आपको शॉर्ट बनती थी, और ये शॉर्ट अच्छी ट्रेड हो सकती थी, राइट। एंड मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड प्रॉफिट इन दिस। तो अगेन फिलोसफी सेम है, ओआरसी ब्रेकआउट देखें, और आरएसआई को लॉन्ग जाने के लिए एटलीस्ट 60 के ऊपर आने दें, और शॉर्ट रहने के लिए 40 के नीचे रहने दें। एंड ऑफ कोर्स आपका वीवैप एंड सुपर ट्रेंड तो आपको सिग्नल देता ही देता है बाइंग और सेलिंग के, राइट। सो स्टॉप लॉस लगाना न भूलें फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, क्योंकि समटाइम्स मार्केट विल गिव यू फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। सो अगर सपोज करें निफ्टी मंडे गैप अप स्टार्ट होती है 14,550 या 14,500 के लेवल पे, देन अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। और अगर गैप डाउन स्टार्ट होती है 14,255 पे या 200 पे, even 300 पे, then you would see market will come to fill up that novice gap, and उसके बाद ही मार्केट कहीं जाएगी। सो अगेन गैप फिल अप के लिए जो गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं आप वो फॉलो करें। नोविस गैप विल गेट फिल्ड अप मोर और लेस ऑन द सेम डे, while as प्रोफेशनल गैप may not fill immediately, right। तो ये एक चीज का ख्याल रखें, एंड निफ्टी को ऐसे ट्रेड करें। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए अगेन 31,045 से 31,372 तक ये रेंज को न ट्रेड करें, या इसको अगर ट्रेड करना है ओआरसी ब्रेकआउट देखें, और ओआरसी ब्रेकआउट अगेन अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो आरएसआई 60 के ऊपर रहना चाहिए, राइट। ये जरूरी है, एंड वीवैप के ऊपर प्राइस रहनी चाहिए। सिमिलरली ओआरसी अगर डाउन साइड में जाता है तो योर आरएसआई हैज टू कंटिन्यू द वे इट हैज कंटिन्यू द होल डे फॉर बैंक निफ्टी बिलो 40, तो ऐसा फॉलो करें, राइट यहाँ पे। और बैंक निफ्टी अगर गैप अप स्टार्ट होती है लेट्स से 31,600 पे या 31,800 पे, अगेन यू विल सी अ राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। एंड अगर गैप डाउन स्टार्ट होती है 31,045 पे या 30,890 पे या 30,700 पे या 600 पे, देन यू विल सी बाइंग इंटरेस्ट डेवलपिंग, एंड अगेन गैप फिलिंग टारगेट बनेगा आपका। गैप फिलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें ट्रेड करने के लिए। जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, वॉल्यूम शुड बी राइजिंग एंड अबव एवरेज वॉल्यूम, एंड प्राइस शुड बी लॉन्ग ट्रेड के लिए वीवैप के ऊपर रहना चाहिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए आरएसआई 60 के ऊपर रहना चाहिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए प्राइस वीवैप के नीचे रहना चाहिए, सुपर ट्रेंड के नीचे रहना चाहिए, एंड आरएसआई 40 के नीचे रहना चाहिए, राइट। सो सिंपल टेक्निक्स है फ्रेंड्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट इन मेनी सेशंस, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये कंसोलिडेशन और एंड करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में वापस आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इट्स गुड समटाइम्स टू टेक रिलैक्स, to not to trade also, right, to understand from the market gives amazing opportunity to
keep on learning, right? So keep on learning, friends. Now अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो RSI 59 पे है, जो कि निफ्टी का RSI 59 पे आया है. दैट्स क्लोज टू इट हैज जस्ट ट्राइंग टू गो इनटू साइडवेज मोड, बट 60 RSI आने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा. इंडिया विक्स अच्छी चीज हुई है कि कल बड़ा है, बट खाली 1% बड़ा. इतनी लॉस के बाद में इंडिया विक्स कम से कम 5-6-7% बढ़ना चाहिए था, जो नहीं हुआ. दैट इज गुड न्यूज फॉर बुल्स. एंड इन डेली stochastics is in neutral, ओवरबॉट जोन में नहीं है, बट वीकली में और मंथली में अभी भी ओवरबॉट जोन में. सो सम मोर करेक्शन एंड सम मोर कंसोलिडेशन कैन बी एक्सपेक्टेड. दैट शुड नॉट सरप्राइज यू. मार्केट है, पीपल आर कीप ऑन आस्किंग कि सर सडनली इतना क्यों गिर गया. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग इन माय एवरी वीडियो, दैट मार्केट इज इन करेक्शन एंड कंसोलिडेशन जोन. सो इट विल डू दैट. अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो इट हैज टू जनरेट, इट हैज टू गैदर सम स्ट्रेंथ बिफोर टेकिंग अ नेक्स्ट मूव, राइट? सो मंडे के लिए जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है फ्रेंड्स, वो आ रही है 14,200 से 14,600 की फॉर बैंक निफ्टी, 30,500 से 32,000. सो बैंक निफ्टी की रेंज काफी वाइड है. और बैंक निफ्टी अगर गिरी है ऐसे, तो बैंक निफ्टी यू कैन सी दैट इट मे जंप अप विद गैप्स एज वेल. सो दैट शुड ऑल्सो नॉट सरप्राइज यू. ना ऐसे ही टाइम पर स्टॉप लॉसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज स्टॉप लॉसेस आपको छोटे लॉस के साथ में बाहर निकाल देते हैं. एंड इफ यू आर इन प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट स्मॉल प्रॉफिट के साथ में बाहर निकाल देगा, लॉस नहीं होने देगा. सो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्रेंड्स इफ यू आर अ ट्रेडर. एंड ऑफ कोर्स वॉच आउट द, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो उस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में देखना न भूलें, बिकॉज दैट गिव्स द इंडिकेशन हाउ द मार्केट इज बिल्डिंग अप प्रेशर ऑन अ बुलिश और बेरिश साइड. एंड इफ यू आर इन ऑप्शंस, ऑप्शन चेन डेटा न फ्यूचर निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर वाले लोग ऑप्शन चेन डेटा देखना ना भूलें, बिकॉज दैट गिव्स यू द करंट अफेयर ऑफ बुल्स एंड बेयर्स इमोशनल state. And USD INR and India VIX के chart. So these are the keys you would see. Market is inversely proportional to these indicators, and you must watch them to gauge the fear in the market, right? I trust with this analysis, friends, you are becoming more confident traders and profitable traders. Thank you very much for watching the video. To get latest information, you can subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Do remember to press the bell icon such that you get latest notification, right? And do share these videos with your friends and trading communities. We have created many videos, friends, here, and you can also go to our Facebook page where we keep on posting about the companies in writing, giving their analysis, as everything cannot be analyzed on the video, right? So thank you once again for watching and liking the video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.